Hello, my dear C programmers. Myself, Prasad sir, from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this amazing course on C programming. Previous session में हम लोगों ने ये देखा कि why programming languages are needed. Programming language की जरूरत क्या है? And वहां पे हम लोगों ने देखा कि how the procedure oriented programming, C programming language is evolved. In this session, I know that you are more eagerly waiting for writing your first C program. तो इस session में हम लोग वो करने जा रहे हैं. And that's why the heading for this session I have given as life cycle of C program. Before moving into the more and more detailings about programming language statements, हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये अपना C program किस stages से गुजरता है. What are its life cycle stages are. But before encountering into the first programming statement itself, what I feel is, let's move ahead to C first. इनको नमस्ते करके आगे चलते हैं. This fellow is Dennis Ritchie. He, along with one of his friend, Ken Thompson, has given two amazing gifts to this computing world. One is C programming language and other one is Unix operating system. So इनको नमस्ते करके आगे बढ़ते हैं in our first C program, and the problem statement that we are going to work on is my first C program to print success is always on console. Console मतलब monitor पे हम लोगों को print करना है success is always. Many of the books you will see the first program as printing hello worlds, but what I personally feel कि hello world क्यों print करना है? Let us print something which can motivate us for the programming. So we'll be printing success is always instead of printing hello world. But इस program का one motto is there that we wanted to highlight the life cycle of C program and somewhat basics of the C programming is. मैं जो program लिखने जा रहा हूँ उसके against I'm not going to elaborate on any programming statement in this session. हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ फोकस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सी प्रोग्राम के ऊपर, राइट. एंड वन मोर टर्मिनोलॉजी यू कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई इन दिस केस, एंड दैट इज IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. सो हम लोग इस कोर्स में यूज करने वाले हैं IDE. दो तरह के IDEs हम लोग यूज करेंगे. पहला शुरुआत हम लोग करने वाले हैं टर्बो सी IDE के थ्रू. I know that you probably may feel that this idea is very new for you, but don't worry. अपने कुछ sessions में you could be able to get to know how easily you can handle this Turbo C IDE. थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम लोग विजुअल कोड में भी विजुअल कोड IDE में भी इसको कोड करने वाले हैं. So let's see how we can go ahead for this. So let's go on writing our first program to print successes always. Just concentrate on the screen and concentrate what I'm saying in this. So at this moment, I'm inside my Turbo C IDE. I'll be elaborating on what type of commands I'm giving here. ये कौन कौन से कमांड देने हैं, कैसे देने हैं, इस IDE को कैसे यूज करना है, कैसे ओपन करना है. I'll mention all these things for you right now. Don't worry for this, right? Okay. So अभी के लिए ये आपको जानना जरूरी है कि हम लोग अपने मशीन्स के अंदर, मतलब इन माई मशीन आई एम इनसाइड द C ड्राइव, उसके टर्बो C3 करके एक डायरेक्टरी में मैं हूं, उसके अंदर और एक डायरेक्टरी है bin. एंड यहाँ पे व्हाट आई डू इज मैं एक कमांड देने जा रहा हूं, A नाम के सारे फाइल्स को डिलीट करो, राइट. सो आई विल बी डिलीटिंग A नाम के सारे फाइल्स. हम लोगों को चेक करना है कि अपना कमांड डिलीशन ऑफ A नाम के सारे फाइल वर्क हुआ है या नहीं. सो इस केस में करेंगे dir a डॉट स्टार. स्टार मीन्स ऑल पॉसिबिलिटी. सो मैं कमांड देने जा रहा हूं, show me the directory of all the files with the name A, and it says that file not found. It is quite obvious because इसके पहले हम लोगों ने A नाम के सारे फाइल्स को डिलीट कर दिया, राइट. सो अभी हम लोग चलते हैं टर्बो C IDE के अंदर. दिस इज अ सॉफ्टवेयर which is going to provide us the facility for
writing our C programs. IDE ये टर्म का इलेबोरेशन मैं इसके बाद में करूंगा. राइट, ये टर्बो सी सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है. राइट, इसमें वेरियस मेनूज आर देयर, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग एंड ऑल दोस थिंग्स. राइट, हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू. सो जैसे मैंने न्यू फाइल खोला, so here I do get editing facility for writing my first C code. As I mentioned, इस प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे इस सेशन में, पर यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं इंक्लूड stdio.h. इसके बाद मैं लिखूंगा void main एंड इसके बाद I'll be using one function printf एंड जहां पे प्रिंट करेंगे सक्सेस इज ऑलवेज. राइट, ओके. सो एटलीस्ट एज अ प्रोग्रामर यू कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, आप सिर्फ एक चीज को जान पाओगे कि प्रिंट एफ मतलब कुछ प्रिंटिंग हो रहा है एंड वी आर प्रिंटिंग सक्सेस इज ऑलवेज इन दिस केस. राइट, ओके. अकॉर्डिंग टू वन न्यूमन आर्किटेक्चर, वन न्यूमन बाबा सेज टू अस दैट आपके हर प्रोग्राम को आपको पहले सेव करना है. राइट, सो व्हाट I'll do is I'll save my code as, I'll go in save and we'll save the code as a.c. a is the name of my file and dot के बाद जो आता है उसको हम लोग कहते हैं extension which indicates the type of file it is. .c is for C programming, .cpp is for C++ programming, .py is for Python programming, .java is for Java programming, something like that. You must have gone through various types of other extensions like .pdf, .mp3, .jpeg, something like that. तो अपना C प्रोग्रामिंग के लिए एक्सटेंशन होगा .c. ये फाइल मैंने सेव कर दिया. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो a.c नाम का फाइल यहाँ पे बन चुका है. राइट, लेट्स कम ऑन टू द प्रॉम्प्ट. राइट, एंड dir a.c और a.star करते हैं. राइट, ओके. सो यू कुड बी एबल टू सी दैट पहले अपने डिस्क में ए नाम का कोई फाइल नहीं था, अभी ए नाम का एक फाइल बन चुका है. एक्सटेंशन इज सी. 69 byte is the size of the file and this is the time and the date at which this particular file is created. right, तो हम लोगों ने अपना प्रोग्राम तो लिख चुके हैं, तो इसको रन करना है. सो इफ आई गिव द कमांड एज a.c, इसको रन करो, तो वहां से मुझे कंप्यूटर से जवाब आ रहा है कि आपने जो दिया है दैट इज अ इलीगल कमांड. सो व्हाई इट इज गिविंग मी दिस एज अ इलीगल कमांड? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन द रीजन इन द प्रीवियस सेशन दैट हम लोग जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं दैट इज .c, computer is not able to understand that language, so it can understand only something which is present in zeros and ones. So अपना प्रोग्राम C लैंग्वेज में होने की वजह से it is not able to recognize this command, so it gives me the prompt as illegal command. right, so इस केस में हम लोगों को अपने कोड को कंपाइल करना पड़ेगा. so what I'll do is यहां से कंपाइल ऑप्शन में चलेंगे, कंपाइल करते हैं कोड को. ओके, यहाँ पे कंपाइलर सेज दैट देयर आर नो वार्निंग्स एंड नो एरर्स. दैट मींस द कंपाइलर इज हैप्पी विद आवर कोड. इस हमने जो 4 लाइन लिखे है उसमें एक भी एरर नहीं है एंड द कंपाइलेशन प्रोसेस इज सक्सेसफुल. अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स यूज, कंपाइलर्स जॉब इज टू कन्वर्ट द सी प्रोग्राम इनटू zeros and ones. तो हम लोग चेक करते हैं कि इस कंपाइलर ने अपने जो a.c प्रोग्राम है उसके साथ क्या किया है. राइट, सो I'll take you again into the DOS prompt and dir a.star करते हैं. राइट, ओके. तो यहाँ पे बिफोर द कंपाइलेशन आई वॉज एबल टू फाइंड ओनली वन फाइल दैट इज a.c. अभी आफ्टर कंपाइलेशन आई गेट a.c, तो उसमें है ही और एक फाइल बना है a.obj एंड सेव एज करने की वजह से we do get one file that is known as a.back, that is the backup file. right, so compiler has converted my .c file into .obj file. तो अभी चेक करते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं स्क्रीन.
dir a dot star, राइट, एंड a dot obj को रन करने की कोशिश करते हैं. द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू रन दिस a dot obj, इसके लिए भी आंसर आता है उधर से इलीगल कमांड. सो दिस इज समवॉट शॉकिंग एंड अगेंस्ट द डिस्कशन दैट वी हैड इन द प्रीवियस सेशन. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने ये देखा, डॉट सी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो ये जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट होगा. आई डू एग्री, बट यहाँ पे डॉट ओबीजे फाइल है तो इसके ऊपर और एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, एंड दैट ऑपरेशन इज नोन एज लिंकिंग. बिकॉज अपने प्रोग्राम में जो हम लोगों ने प्रिंटफ फंक्शन लिखा है उसका जीरोस एंड वंस अपने प्रोग्राम के जीरोस एंड वंस के साथ जुड़ना अभी बाकी है. ये लिंकिंग प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा जैसे हम लोग अपने 4th यूनिट में चलेंगे, दैट इज फंक्शंस. अभी के लिए just we are looking towards the process of linking, how it can be done, but please see towards this that a.obj file आपका रन नहीं हो रहा है, right? Okay, now let me take you again back into the turbo C IDE. यहाँ पे compile option में आपको linking का भी option दिख रहा है, right? Okay, so यहाँ पे linker is also successful and let's check linker ने अपने प्रोग्राम के साथ क्या चेंजेस किए हैं. dir a dot star. So अभी आप देख पाओगे यहाँ पे after the compilation I was having these 3 files into my machine. After linking I do get one more file that is a dot exe, and this particular file is known as executable file. And after the linking we are able to see that our a dot obj has got converted into a dot exe. And अभी this a dot exe को रन करके देखते हैं. So I'll go with a dot exe and please see it says success is always. So यहाँ पे जब भी मैं a dot exe कर रहा हूं and then and only my program is getting executed and it prints success is always for us, right? तो जब भी हम लोग इस प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे तो वी कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई समथिंग लाइक दिस. हम लोगों ने यहाँ पे अपना सोर्स फाइल लिखा दैट इज a.c, राइट. दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज अ सोर्स मॉड्यूल, वाज नॉट एबल टू गेट एग्जीक्यूटेड. इसके ऊपर एक प्रोसेस किया एंड दैट प्रोसेस इज इसको कंपाइल किया, राइट. ओके, एंड कंपाइलर हैज कन्वर्टेड माय फाइल इनटू a.obj. It was very surprising for us that a.obj was also not getting executed, क्योंकि उसके अंदर कुछ फंक्शंस है जिनका लिंकिंग होना बाकी था, राइट. सो a.obj के ऊपर हम लोगों ने और एक प्रोसेस किया दैट इज लिंकिंग, एंड लिंकर हैज कन्वर्टेड आवर कोड इनटू a.exe. All our these 3 programs, that is source module, object module as well as executable module. नए नए टर्म्स है, डरना मना है, ध्यान से सुनो ये क्या चल रहा है. सोर्स मॉड्यूल कंपाइलर कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, लिंकर कन्वर्ट्स इट टू एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल. ऑल दिस 3 मॉड्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन माय हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट. कहां पे है? टीसी और टर्बो C3, एंड उसके अंदर बिन डायरेक्टरी में दिस 3 फाइल्स आर देयर, राइट. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे a.exe लिखा और एंटर की को हिट किया, at that time what happens is my program is taken from the hard disk drive and program gets loaded into the memory known as RAM of our system, primary memory और main memory. and जैसे ही प्रोग्राम main memory में आएगा then यहाँ पे बैठा है master, that is microprocessor, which goes on executing our program with the help of fetch, decode and execute process. प्योर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, जिसका डिस्कशन हम लोग पिछले सेशन में कर चुके हैं, एंड यू विल सी द प्रूफ ऑफ यूज ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इनटू द सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग. आगे जाके जितने भी प्रोग्रामिंग करेंगे वहां पे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आपको दिखाई देगा. So this is what is a life cycle of a C program. अपना एक C program एग्जीक्यूशन होने के लिए इतने सारे स्टेजेस से गुजरता है. Source code is compiled to give us object code, is linked to give us executable code, is loaded in the RAM, and then only it can be executed by microprocessor.
I hope these things are clear, right? Okay. So in this case, now when I look into this Turbo C, right? इस Turbo C को अभी ID क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. यही सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने अपना प्रोग्राम लिखा, राइट? ओके, यही सॉफ्टवेयर से वी वेंट ऑन कंपाइलिंग द प्रोग्राम, वी वेंट ऑन लिंकिंग द प्रोग्राम. इसी सॉफ्टवेयर में से हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं. इसी सॉफ्टवेयर में से हम लोग प्रोग्राम को डीबग कर सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, यहाँ पे एडिटिंग एंड सर्चिंग भी कर सकते हैं. सो इस प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए जितने भी फैसिलिटीज मुझे चाहिए वो सारे इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक सॉफ्टवेयर में हमको मिलते हैं. इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. थोड़ा सा उल्टा इसका डेफिनेशन देखेंगे, उर्दू के जैसा है कि एनवायरनमेंट विच इज नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इन अ इंटीग्रेटेड फॉर्म इज नोन एज IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. सो ये टर्बो सी अपने को ये एनवायरनमेंट इंटीग्रेटेड फॉर्म में दे रहा है. सो वी कॉल दिस एज व्हाट, IDE. आगे जाके अपने कोर्स में VS कोड करके और एक IDE एक्सपीरियंस करेंगे, तब जाके यही फैसिलिटीज आपको VS कोड के थ्रू भी मिलेंगे, राइट? ओके, उस समय उसका डिटेलिंग्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, राइट? बट दिस आई होप कि IDE टर्मिनोलॉजी इज क्लियर एज वेल एज अपने प्रोग्राम का लाइफ साइकिल इज क्लियर एट दिस मोमेंट, राइट? ओके, सो लेट्स सी लाइक व्हाट PPT सेज अबाउट दिस. थोड़ा सा समराइज करेंगे थ्रू द PPT. एंड यहाँ पे इस केस में अभी लाइफ साइकिल ऑफ द C प्रोग्राम में वी आर एबल टू सी A.C and this A.C is compiled and compiler has converted my file into A.obj, right? A.obj is linked to give me A.exe and this all the files are present on our HDD hard disk drive, right? Okay, and they are getting loaded inside the RAM or the main memory by the loader. And then यहाँ पे है microprocessor which executes our program with the help of fetch, decode and execute operation. Pure von Neumann architecture को experience कर सकते हैं. So this is what is the life cycle of our C program. I hope कि this is clear, right? One more thing that I wanted to show you. Compiler, linker and loader ये हार्डवेयर होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे, ये अगर क्वेश्चन चलता है तो डेफिनेटली दीज आर सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर्स. सो कंपाइलर के रूप में टर्बो सी में एक फाइल काम करता है दैट इज नोन एज tc.exe एंड लिंकर के रूप में टर्बो सी में एक फाइल काम करता है दैट इज नोन एज tlink.exe. जो लोडर है जिसका काम है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को लोड करना फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव इनटू द रैम, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम and generally उसको exec loader कहते हैं, right? But I can definitely show you at this moment that tc.exe is the compiler that is present in our disk and tlink.exe is a linker which is present in our disk. Let's see this into the program first. Right. Okay. So let's come on the command prompt and observe dir t star dot exe, right? Okay, ऑब्जर्व करो इस डायरेक्टरी को ध्यान से एंड यहाँ पे आपको दो फाइल दिखेंगे जो हम लोगों ने अभी लाइफ साइकिल में डिस्कस किए हैं. द फर्स्ट फाइल इज tc.exe and this file is representing compiler for Turbo C environment. इसका जॉब है टू टेक द सोर्स फाइल एंड कन्वर्ट इट इनटू द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, राइट? ओके, नेक्स्ट फाइल हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज tlink.exe which is working for linking process and this is going to link the obj modules to convert them into executable module. And exec loader is the part of operating system which takes the program from hard disk, loads it into the RAM and then microprocessor from one end goes on executing it with the help of operations known as fetch, decode and execute, right? So this is what we generally call it as the life cycle of C program. A.C, A.obj, A.exe gets loaded in main memory and then processor executes it with the help of fetch, decode and execute. I hope कि life cycle is clear to everyone and फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में
that is what are the language fundamentals. आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं one more next interesting session, that is language fundamental. Thank you very much for watching.